جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس بحث سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ ایک جاہل معاشرے میں عقل و شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ عمل ہمیشہ خوشی نہیں لا سکتا، لیکن عمل کے بغیر خوشی نہیں ملتی۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ شخص بہادر نہیں ہو سکتا جو درد کو سب سے بڑی برائی سمجھے اور خوشی کو سب سے بڑی بھلائی سمجھے۔ جب مشورہ دینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو دل کی سن لینی چاہیے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی مشہور آدمی کو کاپی مت کرو، ہمیشہ خود پر یقین رکھو اور اپنی پہچان خود بناؤ۔ غرور سے بھری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ خاموش عبادت اور خاموش محنت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کرو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ بہترین انسان کون ہے اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس شخص نے ماضی میں ضرور کسی دوسرے انسان کی غلامی کی ہوگی۔ دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ ہر میٹھی مسکراہٹ کے پیچھے ایک تلخ دکھ ہوتا ہے جسے کوئی دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنی محرومیوں کو برداشت کریں اور دوسروں کی آسائشوں کا شکوہ نہ کریں۔ اگر آپ میرے حقیقی دوست بننا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کریں، میرے حالات سے نہیں۔ اس نفرت سے نہ ڈریں جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈریں جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ غلطیوں اور گمراہی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے لوگوں سے سیکھا جائے۔ جو انسان آپ کے ساتھ دل سے بات کرے اسے کبھی بھی دماغ سے جواب مت دینا۔ ایک عقل مند آدمی جتنا بیوقوف کے سوال سے سیکھتا ہے، اس سے کم ایک بیوقوف ایک عقل مند کے جواب سے سیکھتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ناممکن بنانے والے تم خود ہی ہو۔ اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں
असल में क्या करना है। लोग कामयाबी को पसंद करते हैं, मगर कामयाब लोगों से नफरत करते हैं। जब किसी इंसान को किसी काम से मना किया जाता है, वो सबसे पहले उस काम को करने का सोचता है। जब इंसान की रूह थक चुकी हो तो नींद से थकावट नहीं उतर सकती। जो लोग आपकी खामोशी को नहीं समझते, वो आपकी बातों को कैसे समझ सकते हैं। कभी कभी किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया जाए। कभी कभी आप इसलिए भी हंसते हैं क्योंकि आपके पास रोने की मजीद गुंजाइश नहीं होती। जो आंसू दूसरों की तकलीफ में बहाया जाए, वो जल्द ही खुश्क हो जाता है। इख्तियार होने के बावजूद फैसला न करने वाला इंसान मौके को जाया कर देता है। इंसाफ अगर वक्त पर न किया जाए तो वो भी नाइंसाफी के जुमरे में आता है। माफ जरूर करें, मगर भूले नहीं, वरना पहले से ज्यादा चोट लगेगी। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान को गुजरा हुआ मुश्किल वक्त ज्यादा याद आता है। छोटी छोटी बेहतरी आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाती है। एक गलती जो आपको आजिज बनाती है, उस कामयाबी से बेहतर है जो आपको मगरूर बनाती है। सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। जब तक बीमार जिंदा है, सेहतयाबी की उम्मीद बाकी है। इल्म के बगैर जिंदगी मौत जैसी है। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उठता है। अक्सर भूल जाना दरअसल आला जहानत की अलामत है। जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो जहालत का शिकार है, वो कभी रोशनी तलाश नहीं कर सकते। जहां बहुत लोग बोलना चाहें, कभी कभी वहां खामोश रहना बेहतर होता है। तरबियत अच्छी हो तो इंसान धोखा नहीं देता। अगर आपके पास एक बाग और एक लाइब्रेरी है, तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। एक अक्लमंद इंसान कम अक्ल के साथ बहस नहीं करता। अगर एक चीज को सोचने में बहुत वक्त लगा दोगे तो उसे कभी भी कर नहीं पाओगे। किसी पर भरोसा करने से पहले सोचो, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों की बहुत किस्में हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। ताखीर आसान चीजों को मुश्किल और मुश्किल चीजों को मुश्किल तर बना देती है। जो पूरे दिल से रोना नहीं जानते, वो हंसना भी नहीं जानते। आज का अच्छा वक्त कल के गमगीन ख्यालात हैं। कामयाबी का हर सफर एक मुस्बत सोच से शुरू होता है। जो जितना आगाह है, वो उतना ही जिम्मेदार है। गुलाम और कांटा, गम और खुशी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी 4 चीजों की कदर करो, जिंदगी में हमेशा खुशहाल रहोगे। नंबर 1 तंदुरुस्ती, नंबर 2 इल्म, नंबर 3
सच्ची दोस्ती। नंबर 4, आजादी। खोई हुई कदर और अहमियत वापस हासिल करने के लिए 3 सादा मगर ताकतवर असूल। नंबर 1, अल्फाज से ज्यादा अमल दिखाएं। अपनी बातों को अमल से साबित करें। लोग आपकी बातों से मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन जब वो आपकी मेहनत और लगन देखेंगे तभी वो आपकी कदर करेंगे। अपने वादे पूरे करें और दिखाएं कि आप उनके लिए काबिले भरोसा हैं। नंबर 2, दूसरों की खुशी का जरिया बने। जब आप लोगों के मसाइल हल करने में मदद करेंगे या उनकी जिंदगी में सुकून लाएंगे तो वो आपकी अहमियत को दिल से महसूस करेंगे। छोटे छोटे एहसान या मदद के काम हमेशा याद रखे जाते हैं। नंबर 3, अपने असूलों पर कायम रहें। अपनी शख्सियत और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता ना करें। लोग हमेशा उन अफराद की इज्जत करते हैं जो अपने असूलों के साथ जीते हैं, और वक्त के साथ आपकी खोई हुई कदर खुद ब खुद वापस आ जाएगी। लोगों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी इन 5 चीजों पर समझौता ना करें। नंबर 1, सच्चाई। हमेशा सच बोलें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, लेकिन इज्जत हमेशा सच्चाई से बढ़ती है। नंबर 2, इज्जत नफ्स। अपनी खुदी और इज्जत नफ्स को कभी कुर्बान ना करें। जो लोग आपसे हकीकी मोहब्बत और एहतराम करते हैं वो आपकी मजबूत शख्सियत की कदर करेंगे। नंबर 3, असूल। अपनी जिंदगी के असूलों पर हमेशा कायम रहें। लोग आपकी साबित कदमी और असूलों की पाबंदी को याद रखते हैं। नंबर 4, खुद मुख्तारी। दूसरों की खुशनुदी के लिए अपनी आजादी या खुद मुख्तारी ना खोएं। इज्जत तभी मुमकिन है जब आप अपनी शनाख्त बरकरार रखें। नंबर 5, किरदार। अपना किरदार मजबूत और बेदाग रखें। एक बार किरदार पर धब्बा लग जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया की तमाम उलझनें खत्म हो सकती हैं अगर जाहिल खामोश रहे और आलिम हक बोलने लगे। बाअदब मुनाफिक से सच्चा बदतमीज होना बेहतर है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं वो दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। हम हर किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते, इसलिए मानना सीखो, झुकना सीखो और एहतराम करना सीखो। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें और सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। मुस्तकबिल के बारे में परेशान होना छोड़ दें। परेशान होने से मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात कम नहीं होंगी। जिस तरह इंसान की खूबसूरती उसका ज़हन है, उसी तरह ज़हन की खूबसूरती भी खूबसूरत लबो लहजा है।